Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 8th history chapter 6 colonialism and the city. In this video we will be discussed our next topic, and that is planning a new capital. So students, let's start. So what the British want to do now? Why are they changing the structure of Delhi? Why are they expand the city so much? Why are they destroying the city like this? What was their intentions? ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि क्यों नया कैपिटल प्लान कर रहे थे. The planning of the new capital was started by the Britishers. Why do you think to 1857 the Britishers never saw interest in to move their capital to Delhi? But after the 1857 revolt, they decided we have to capture the city of Delhi. They started to organize their functions in Delhi like it is a symbolic importance, because when the rebellion took place it was headed by the Mughal emperors. So people started to believe that still the Mughal emperor retained his position. So we need to recapture that one. 1877 the Viceroy Lytton has organized to Darbar, where Queen Victoria has been declared as an emperor of our country India. India became a classical calling with this declaration, but this celebration was not organized in the regular British settlement in Calcutta. It was organized Delhi. Not only this, it was 1911 King George V was crowned in England, but in Delhi Darbar was organized and celebration were made. Now move on to life in the time of partition. Planning a new capital, it took 20 years to build a New Delhi. ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा, आपको मैंने बताया भी था कि नई दिल्ली बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा, और वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी, ब्यूटीफुल मेंशंस बनाए गए थे, ये मोहल्लाज जो क्राउडेड मोहल्लाज वगैरह थे उनको हटा करके नैरो लेन्स और ये सब एक पूरे प्लानिंग के साथ बनाया गया था. सो the partition of India in 1947 led to a massive transfer of population on both sides of a new borders. Day after Indian independence and partition, Ferris writing began. Over 2/3 of the Delhi Muslim migrated. Almost 44,000 homes were abandoned, and partitions changed the life and occupation of new migrants. 1947 के बाद से जब पार्टीशन हुआ तो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इधर से उधर ट्रांसफ़र होने लगी. इंडिया से लोग पाकिस्तान जाने शुरू हो गए, पाकिस्तान से लोग इंडिया आने शुरू हो गए, और 1947 के बाद से दंगे शुरू हो गए, राइट्स लगने शुरू हो गए, और यहाँ पर सिख और हिंदू शरणार्थी जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, और लगभग 2/3 मुस्लिम्स जो है वहाँ से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए, और इंडिया से माइग्रेट होके लगभग 40,000 जो हाउसेस थे उनको छोड़ करके यहाँ से चले गए थे. इसमें मुख्य जो मेन लोग थे वो कारीगर, छोटे छोटे व्यापारी थे, मजदूर आदि थे. तो द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज्ड सोशल मिलिeu ऑफ दिल्ली. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेज एंड दे वर सून ऑक्यूपाइड बाय द एमिग्रेंट्स. बहुत जल्दी जो है वहाँ से जो आने वाले लोग थे उनके द्वारा ये ऑक्यूपाई कर लिया गया था. एंड हाउसेज वर बर्न, पीपल were threatened, and total scenario of living and survival has been changed. People were forced to live in shanties and lived in the forced to live in shanties and lived in camps in dirty situation. माइग्रेंट्स के रूप में जो 5 लाख लोग पंजाब में मारे गए थे शिविरों में रहने के लिए. शिविर जो होते हैं जो लगाए जाते हैं नए घर बनाने के उद्देश्य से, स्कूल वगैरह में लोगों को रहना पड़ रहा था. इस टाइम पर लाजपत नगर और तिलक नगर जैसे कई जो है कॉलोनीज़ को सेटअप किया गया था. लॉयर्स, टीचर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, ये सब भी इनमें भी, इनके काम में भी चेंजेस आ रहे थे. और पुरानी दिल्ली में जो उर्दू कल्चर था वो भी पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो गया था. इसमें और जो इनसाइड द ओल्ड सिटी अंदर क्या हो रहा था, पुरानी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था. द एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वॉज निगलेक्टेड इन द 19th century. द सिस्टम ऑफ वेल्स ऑल्सो ब्रोक डाउन एंड कैनल्स रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट वर डैमेज्ड.
At the end of 19th century, the Shahjahani's drains were closed. A new system of open surface drains was introduced. The city was left to expand in uneven manner and city grew unplanned. शाहजहानी इस पीरियड में जो वाटर सप्लाई जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा बनाया गया था। ये मैं आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि अब वो सारी चीज़ें नेगलेक्ट होनी शुरू हो गई। जब नया कैपिटल प्लान हुआ, जब नई दिल्ली बनाई गई, तो अब ये पुराना जो शाहजहां के पीरियड, शाहजहां या शाहजहानाबाद का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गया। अब जो कैनल्स वगैरह थे उनको तोड़ दिए गए, उसमें घर के कचरे वगैरह डाले जाने लगे, लोगों के कचरे बह करके उसमें आने लगे। इसके अलावा जो नगर पालिका थी उन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे ज़्यादा काम करना या खर्च करने को वो तैयार नहीं थे। अब धीरे धीरे जो है पूरा शाहजहानाबाद जो है वो अनइवन होते जा रहा था। पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम था, क्राउड बढ़ते जा रहा था, तो जो एक प्लान्ड सिटी थी वो अनप्लान्ड होती जा रही थी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज़। द मुगल एरिस्टोक्रेसी in the 17th and 18th century lived in a grand mansions called Havelis. Havelis had large walled compound with mansion, courtyards and fountain and many family housed in it. तो मुगल्स के पीरियड में पहले हवेलियाँ हुआ करती थीं, खुले आंगन, फव्वारे वगैरह उसमें लगे रहते थे, फाउंटेन्स लगे रहते थे। ये लगभग 17th-18th सेंचुरी के आसपास की बात है। लेकिन जैसे जैसे न्यू सिटी प्लान होनी शुरू हुई, ये भी मेंशंस जो हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गए। जो रिच लोग थे उन्होंने अपनी हवेलियों को अब ज़्यादा उनके मेंटेनेंस नहीं देख पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उसे बेचना शुरू कर दिया, उनको तोड़ना शुरू कर दिया या उनको डिवाइड करना शुरू कर दिया। और जो बड़े ट्रेडर्स थे उस टाइम पर, उन्होंने इन हवेलीज़ और मेंशंस को ख़रीदना शुरू कर दिया। As a result, हवेलीज़ begin to be subdivided and sold. The street fronts also get converted in shops. तो अब हवेलियों को जब बेचा जाने लगा तो सामने का जो फ्रंट एरिया होता था वहाँ पे शॉप बनाए जाने लगे। हवेलीज़ वर soon occupied by immigrants and were subdivided soon. They lost their significant architecture and got converted into small and congested houses. धीरे धीरे ये हवेलियाँ जो हैं वो छोटे छोटे और congested houses में चेंज होनी शुरू हो गई। और नया क्या आया, नया आया बंगलों का फैशन जो है वो आना स्टार्ट हो गया। दे वर द सिंगल स्टोर हाउस विच हैज़ अ बरामदा एंड इट्स फ्रंट। छोटे छोटे घर बनने शुरू हो गए जिसमें सामने में बरामदे वगैरह बनाए जाते थे, बैठक बनाई जाती थी और छोटे छोटे रूम हुआ करते थे उसमें। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नया आर्किटेक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। छोटे छोटे कंजस्टेड घर बनने लग गए और एरिया जो है धीरे धीरे से काफ़ी कंजस्टेड होना शुरू हो गया। तो अब जो ओल्ड सिटी थी उसकी हालत नई सिटी के कंपैरिजन में बहुत ख़राब हो गई या अनप्लान्ड हो गई, और जो न्यू कैपिटल बना या जो न्यू दिल्ली बना वो एक प्लान्ड सिटी के नाम से बना और प्लान्ड सिटी के हिसाब से चलना शुरू हो गया। इसके अलावा पार्टीशन से जो लोग आए थे वो सारे के सारे ओल्ड दिल्ली में ही सेटल हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन या क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो गया। सो अभी हम यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।